Very good Good afternoon. afternoon. Very good Good afternoon. afternoon, Very sir. good afternoon. Good afternoon, Very good sir. afternoon. Very good afternoon. So 2.3 sorry 12.3 is completed. किसी एक बच्चे ने मैसेज किया था कि सर 10th क्वेश्चन एक बार फिर से आप मेरे को रिवाइज करा दीजिए. सो क्वेश्चन 10 ऑलरेडी हमने सॉल्व किया था. ठीक है, फिर से एक बार इसको देख लेते हैं. सो हियर गिवन द क्वेश्चन इज A place you take 5, B place you take -3. Okay, A place you take 5 and B place you take -3, and this value put this equation. So first you write the equation is given 2 inside bracket A square plus AB bracket close plus 3 minus AB. ठीक है, this is the question. 2 inside bracket A square plus AB plus 3 minus AB. ठीक है, तो first of all first we simplify. ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो ब्रैकेट्स के अंदर सॉल्व हो रहा है, नो. सो सिंपल यू मल्टीप्लाई टू ब्रैकेट्स एंड 2. ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर जितने वेरिएबल दिए हैं उनसे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो यहाँ हम देखते हैं 2, यहाँ वेरिएबल इज ए स्क्वायर. ठीक है, नंबर इज 1 ए स्क्वायर. सो 2 बन जा 2 ए स्क्वायर देन प्लस 2ab प्लस 3 minus ab. ठीक है, so simply 2 multiply 2 inside the bracket a square and ab. So 2a square plus 2ab plus 3 as it is you write minus 3ab as it is you write. Then next step you find the like term 2a square. Another a square is given, no. ठीक है, then next is 2ab. So here you write 2ab. Okay, then AB another, yes, minus AB. ठीक है, then plus 3. Okay, so a 2a square as it is you write. Then here like term AB 2AB पॉजिटिव में है और -1AB, तो 2 - 1 इक्वल टू 1AB. तो 1 हम लोग मेंशन नहीं करते हैं, सिंपल हम क्या लिखेंगे AB प्लस 3. ठीक है, then next line you prove that. Next line में you take here a place is 5, a place is 5, so put here a place 5 square as it is लिख देंगे, then plus 5, then b place you take -3, so you take brackets plus 3. ठीक है, how? Because reason यहाँ लिख देंगे, because given the question is a place to take 5 and b place to take -3. Okay, so a 5 का square, that means 5 multiply 5 25. Okay, plus minus minus 3 5s are 15, then plus 3. ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 2s are 50 प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, 15 minus 3 is equal to 12. 15 is greater than 3, so here to greater number sign is negative. फिर 50 minus 12, the result is 38. This is your answer. Okay, क्लियर है? किसी भी बच्चे को डाउट इसमें? सर एक और बार समझा दीजिए. और कोई बच्चा? चलो एक बार देख लेते हैं. क्वेश्चन क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab का मल्टीप्लाई करना है 2 से. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab प्लस 3 माइनस ab एज इट इज लिख देंगे.
Then next step you find the like term. Like term find करेंगे 2a square plus 2ab and here we see that ab another, so you take the ab के nearest ले आएंगे, then plus 3 as it is you write 2a square another 2a square, no a square नहीं दिया as it is लिख देंगे. फिर here like term है plus minus minus कर देंगे 2 minus 1 is equal to 1ab and plus 3 as it is रख देंगे. फिर a के place पे you put them 5 and b place you take the minus 3. ठीक है, so a के place पे 5 put कर दिए, 5 का square that means 5 multiply 5 25, 5 25 to the 50, 5 3 the minus 15 plus 3 minus 15 plus 3 minus 15 में plus 3 कर देंगे, so result is 12 and 25 to the 50, so 50 minus 12 is equal to 38. ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट वी स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 12.4. ठीक है, सो 12.4 में आ जाते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, observe the pattern of the digit and made the form the line segment to the equal length, then you will find the such segmented digit on the display the electronic watches or calculator. ठीक है, तो यहाँ कुछ एक लाइन सेगमेंट का यूज करके नंबर्स ड्रॉ किए गए हैं. ठीक है, लाइन सेगमेंट का यूज करके नंबर ड्रॉ किया गया है एंड यू फाइंड टू नेक्स्ट 5, 10 एंड 100 डिजिट. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट का यूज करके हम बना लेते हैं. So here we see that 1 2 3 4 5 6, तो 6 लाइन सेगमेंट का यूज करके नंबर 6 को ड्रॉ किया गया है. ठीक है, फिर अनदर लाइन सेगमेंट का यूज करके बनाया यहाँ कुछ. ठीक है, एक और फिगर बना लेते हैं जल्दी से. ठीक है, इस तरह का फिगर बना हुआ है एंड हेयर यू first of all check them how many line segment here using. So here we see that 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 digit 6 number को बनाने के लिए how many line segment using 6, and here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, so here 11 line segment use make a 2 6. ठीक है, इसी तरह थर्ड 6, तो थर्ड 6 के लिए हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, so here using 16 line segment used to 3 6. ठीक है, क्लियर है? यहाँ फिगर समझ में आ रहा है बच्चे कैसे इसने यूज किया है? Yes, 3 sir. यहाँ 6 लाइन सेगमेंट का यूज करके 6 नंबर ड्रॉ किया है. अगेन 2 6 नंबर ड्रॉ करने के लिए इसने क्या यूज किया? 5 11 लाइन सेगमेंट का, और 3 6 लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए यूजिंग द 16 लाइन. ठीक है, तो हेयर अगेन दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 5n plus 1. ठीक है, ऑलरेडी क्वेश्चन में ये मेंशन है and the question is given you make a 5 digit 10 digit and 100 digit.
100 डिजिट तक बनाने के लिए हाउ मेनी लाइन सेगमेंट यू आर यूजिंग, ठीक है। सो एन इज रिप्रेजेंट नंबर ऑफ 16, एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ 16। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट 6 को लेता हूं, ठीक है, वी टेक द फर्स्ट वन, ठीक है, ये पैटर्न है, इसी पैटर्न को यूज करके आप हाउ मेनी 6 बना सकते हैं एंड हाउ मेनी लाइन सेगमेंट यूजिंग द 6, ठीक है। तो जैसे कि इसमें हम देखते हैं 5n मैंने ले लिया फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट को इसमें प्रूव करके देखता हूं कि ये सही है या रॉन्ग है। सो 5, हाउ मेनी 6 हियर, 1, तो 1 प्लस 1, 5 1 जा 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। दैट मीन्स 1 6 ड्रॉ करने में हाउ मेनी लाइन सेगमेंट, 6 लाइन सेगमेंट। इसी तरह मैं सेकंड को भी चेक कर लेता हूं, वेरीफाई करता हूं। सो 5 मल्टीप्लाई हाउ मेनी 6 इज हियर, 2, सो 2 प्लस 1, 5 2 जा 10, 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। देखो यहाँ 11 लाइन सेगमेंट का यूज करके 2 6 बनाया है, क्लियर। तो यानी कि ये हमने प्रूव कर दिया कि इसका जो फॉर्मूला है या जो फॉर्मूला दिया है इज करेक्ट। देन क्वेश्चन इज यू राइट द 5 10 एंड 100, ठीक है। इफ यू टेक 5 6 10 6 एंड 100 6, तो हाउ मेनी लाइन सेगमेंट आर यू यूजिंग, ठीक है। तो फर्स्ट वी टेक if n is equal to 5, अगर मैं 5 6 ड्रॉ कर रहा हूं, सो फॉर्मूला इज 5n प्लस 1, ओके। तो 5n के प्लेस पे यू टेक 5 प्लस 1, 5 5 जा 25 प्लस 1 is equal to 26। that means if we make 5 6, so here using the 26 line segment, ठीक है। समझ आया बच्चे, ये क्लियर है। अगर यस मेरे को सर। 6 बनाना है 5 टाइम, तो हाउ मेनी लाइन सेगमेंट वी आर यूजिंग, 26, ठीक है। इसी तरह मैं 10 का लेता हूं, इफ n इज इक्वल टू 10, formula is 5n plus 1, so 5n place you take 10, so plus 1, 5 10 ja 50 plus 1 is 51, ठीक है। that means if you make a 10 6, that means you take 51 line segment, ठीक है। इसी तरह next if you take 100, so 5n plus 1, so 5 multiply सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो, यस सर। Yes, sir. हेलो, आ रही है आवाज बच्चे, ओके। Yes, सो sir. हेयर वी टेक द 106, इफ यू मेक 106, सो पुट द n place is 100, so 5 multiply 100 is 500 plus 1, so here 501, that means you take 501 line segment used to the 106, ठीक है। 106 बनाने के लिए वी मेक यूजिंग टू 501 लाइन सेगमेंट, ठीक है। क्लियर, किसी को भी डाउट बच्चे इसमें, Yes, क्लियर है। sir. Yes, sir. इसी इसी तरह दो क्वेश्चन और दिए हुए हैं बच्चे। द फर्स्ट सेकेंड वन इज गिवन 4, ठीक है, 4
ठीक है, so here we see that 1 2 3 4 4 लाइन सेगमेंट का यूज करके क्या मेक किया है 4। ठीक है, इसी तरह सेकेंड 4 ड्रॉ करना है 1 ठीक है, तो here 2 4 using the how many lines first 4 के लिए 1 2 3 4 line segment and second के लिए 1 2 3 4 5 6 7 7 line segment and third के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कितना यूज कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and here given to the pattern is 3 and plus 1। ठीक है, 3 and plus 1 that means if you make 1 4 so and place you take 1 plus 1 3 plus 1 is 4। ठीक है, तो इसी तरह आप सेकेंड का भी कर लेंगे 7 के लिए। ठीक है, तो आपका जो पैटर्न है अब इसी में आप पुट करना है 5 के लिए 10 एंड 100। ठीक है बच्चे, 5 10 एंड 100 क्लियर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट आपका फिगर ड्रॉ किया है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 लाइन सेगमेंट का यूज करके 8 ड्रॉ किया है। ठीक है बच्चे, क्लियर। और इसका भी पैटर्न दिया हुआ है, इसका पैटर्न क्या है 5n plus 2। ठीक है, इसका पैटर्न है 5n plus 2। ठीक है, इफ यू टेक 5 multiply 1 plus 2 5 1 जा 5 plus 2 is equal to 7 so make a 8 using the 7 line segment। ठीक है, क्लियर। Yes, sir. ठीक है, तो इसी तरह आपको किसका करना है 5 10 एंड 100 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हो जाएगा बच्चे। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यूजिंग द गिवन algebraic expression to complete the table of the number pattern। ठीक है, एक्सप्रेशन जैसे फर्स्ट एक्सप्रेशन इज गिवन 2n minus 1 2n plus minus 1 2n minus 1 and first term यानी कि n के प्लेस पे if you take 1 n के प्लेस पे if you take 1 so what you result got 1। ठीक है, if you take n place 2 n place 2 so 2 2 जा 4 plus 1 is 3। तो ये सेकेंड प्लेस के लिए हो गया। ठीक है, फर्स्ट के लिए ये हो गया हमारा। देन यू फाइंड हियर सेकेंड, देन नेक्स्ट वी फाइंड द थर्ड के लिए 2 n minus 1 so 2 n के प्लेस पे यू टेक 3 minus 1 2 3 जा 6 minus 1 is equal to 7। ठीक है, इसी तरह सपोज यू टेक द 100 प्लेस के लिए 2n minus 1 so 2 multiply n place you take 100 minus 1 so 200 minus 1 is equal to 199। ठीक है, क्लियर। किसी को भी डाउट इसमें फर्स्ट में? तो ये जो बॉक्स बना है इस बॉक्स को आपको कंप्लीट करना है।
क्लियर है बच्चे? सर दोबारा समझा दीजिए। दोबारा बोलो, कौन सा बोलो, और कोई नंबर बोलो, तो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास। क्वेश्चन सपोज 5th में दिया है ना, 5th क्वेश्चन ले लेते हैं, स्क्वायर वाला है, ठीक है। तो n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, n स्क्वायर प्लस 1। सो हेयर यू टेक फर्स्ट स्टेप के लिए, ठीक है, या फर्स्ट टर्म के लिए। तो n स्क्वायर दैट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, ठीक है। अगर आप सेकंड के लिए लेते हैं सो n स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। इसी तरह अगर आप 5th के लिए लेते हैं n स्क्वायर प्लस 1, so n place you take 5, so 5 स्क्वायर प्लस 1, 5 5 जा 25 प्लस 1 इक्वल टू 26, ठीक है। सपोज यू टेक द 100 प्लेस, n square plus 1, 100 square, so 100 square that means 1000, ठीक है, 1000 10,000, so here you take 40, ठीक है, 40 plus 1 is equal to 10,001, ठीक है, क्लियर? यस सर। Yes, sir. एक और देख लो, जैसे कि 4th वन दिया है 7n plus 20, 7n plus 20, so again you take n place 1. If you take n place 1, so 7 multiply 1 plus 20, 7 1 ja 7 plus 20 is equal to 27. If you take n place 3, so 7 multiply 3 plus 20, 7 3 ja 21 plus 20 is equal to 41. If you take n place 100, so 7 n plus 20, so here you take n place 100 plus 20, so 7 multiply 100, 700 plus 20, so result is 720, ठीक है, क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है बच्चे, ठीक है। इसके एक एग्जाम्पल भी आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगर किसी तरह का डाउट होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में इसको आस्क करेंगे, ठीक है, क्लियर? Yes, यस sir. सर। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? No, sir. अंकित, एनी डाउट बच्चे? अंकित, नो सर। ओके ओके, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है, द चैप्टर नेम इज एक्सपोनेंट एंड द पावर, ठीक है। एक्सपोनेंट और पावर है, तो उसका कुछ बेसिक फॉर्मूला हम लोग आज लिख लेते हैं। चैप्टर 13, ठीक है, चैप्टर 13, एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज एक्सपोनेंट एंड पावर, ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर। चलो, सो पावर समझते हैं। इफ एनी नंबर गिवन a बाय 4, ठीक है, a की पावर 4, तो a जो होता है a रिप्रेजेंट टू द बेस, ठीक है, a को हम क्या पढ़ते हैं, ये बेस होता है, ठीक है, a रिप्रेजेंट टू बेस एंड 4 here रिप्रेजेंट टू द पावर। 4 को हम क्या पढ़ते हैं,
पावर, ठीक है, a की पावर 4, ठीक है, a की पावर 4, ठीक है, और if पावर में 2 दिया है, ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं a स्क्वायर, ठीक है, if the power a स्क्वायर, और if given पावर 3, अगर पावर 3 दिया है तो क्यूब, ठीक है, अगर आपको बोल दिया a क्यूब दैट मीन्स a पावर 3, ठीक है, 7 क्यूब दैट मीन्स 7 पावर 3, ठीक है, 9 स्क्वायर दैट मीन्स 9 पावर 2, ठीक है। सो इसी को हम क्या बोलते हैं, बेस एंड पावर, ठीक है। तो बेस जब भी आप लिखो ध्यान रखना इसको थोड़ा सा बिग लेटर, थोड़ा सा बड़े साइज में लिखेंगे ए, ठीक है, और जो पावर लिखते हैं उसे हम छोटा साइज में लिखते हैं, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे लिख देते हैं, ठीक, ठीक है, या फिर एकदम ही छोटा ऐसे कर देते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा बच्चे, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। जब भी लिखो आप बेस को, बेस की जो साइज होगी थोड़ी बड़ी रखना, और पावर को जस्ट उसके अप साइड में, राइट साइड में लिखते हैं, ठीक है, अपने राइट हैंड के साइड में आप लिखना ऑलवेज, ठीक है, क्लियर। चलो अब इसका कुछ फॉर्मूलाज है उसको हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, ए कोई भी नंबर या वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ए पावर m प्लस a power n, if base are same but power are different, ठीक है, if base are same and power are different, so and given to the, ठीक है, given to multiply, अगर multiply में आपका दे रहा है तो सिंपली यू ऐड देम टू द पावर, ठीक है, अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो उसके पावर को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। सेकेंड, अगर बेस सेम है, ठीक है, दोनों के बेस सेम है एंड पावर आर डिफरेंट एंड गिवन टू द डिवीजन फॉर्म, ठीक है, डिवीजन फॉर्म में होगा तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है, पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इसका एक एक एग्जांपल भी देखेंगे, ठीक है, फिर चलो साथ में एग्जांपल ये देखते हैं। जैसे कि a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n। सपोज आपने नंबर ले लिया 7, 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। सो हियर वी सी दैट बेस आर सेम, बेस आर सेम है एंड मल्टीप्लाई फॉर्म में दिया है, सो सिंपल यू राइट द बेस वन टाइम और ऐड द पावर, ठीक है, पावर को हम ऐड कर देंगे तो योर रिजल्ट इज 7 पावर 6, ठीक है, 7 पावर 6। फिर से इफ बेस आर सेम एंड द पावर ए, बेस आर सेम एंड मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में होंगे तो उनके पावर ऐड हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे हमने डिवाइड कर देखा तो अगर बेस दोनों के सेम होंगे और जो भी पावर में होगा यू सब्ट्रैक्ट देम, सो 4 माइनस 2 इक्वल टू 7 पावर 2, ठीक है, इस तरह। इसी का एक और फॉर्म हो जाता है, अगर अपॉन फॉर्म में भी दिया है दैट मीन्स वो डिवाइड को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, अपॉन फॉर्म में है तो डिवाइड को ही रिप्रेजेंट करेगा, और डिवाइड में अभी हमने पढ़ा कि वो सब्ट्रैक्ट होंगे उनके पावर, ठीक है, इस तरह। नेक्स्ट, इफ पावर m और ये ब्रैकेट में है, ठीक है, ब्रैकेट में अनदर पावर, एक और पावर दिया है बट ब्रैकेट्स का यूज करके, तो ब्रैकेट मींस मल्टीप्लाई, सो हियर यू राइट सिंपल a पावर m मल्टीप्लाई n, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, 7 पावर 5 मल्टीप्लाई 3, सो 7 पावर 5 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 7 पावर 15, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, इफ पावर, अगर टू वेरिएबल्स के पावर सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है, ठीक है, बेस डिफरेंट फॉर्म में है, तो हाउ टू राइट, ए बी एंड दोनों का पावर सेम हो जाएगा m, ठीक है, बेस आर डिफरेंट
बट पावर इज सेम एंड मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, मल्टीप्लीकेशन ध्यान रखना मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में होंगे तो आप क्या करेंगे, ब्रैकेट्स का यूज करके पावर एक साथ लिख देना। लाइक एग्जांपल 5 पावर 2 multiply 7 power 2. So here you write 5 multiply 7 inside the bracket and power 2. ठीक है, इस तरह इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। 7 5 जा 35 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह होगा। ओके, नेक्स्ट, इफ पावर इज नेगेटिव, अगर पावर नेगेटिव में दिया है तो आप उसको पॉजिटिव में कैसे चेंज कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, सो रेसिप्रोकल में अपॉन फॉर्म में आएगा, जैसे ही अपॉन फॉर्म में आएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में। ठीक है, इफ 7 पावर -3 और आपको इसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए बोलेगा, सिंपल यू राइट 1/7 पावर 3। ठीक है, सिंपल क्या करेंगे, a पावर इज नेगेटिव एंड यू चेंज द पॉजिटिव, सो सिंपली यू राइट इन रेसिप्रोकल फॉर्म। ठीक है, सपोज अगर इफ डिनोमिनेटर फॉर्म में अगर ये नेगेटिव में है, ठीक है, तो इसको अगर पॉजिटिव में चेंज करना है, अगेन रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये जैसे ही आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे ये पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, 7 पावर -5, जैसे ही हमने इसको रेसिप्रोकल किया 7 पावर 5 इज पॉजिटिव। ठीक है, इफ न्यूमरेटर में होगा तो डिनोमिनेटर में चेंज करते ही वो पॉजिटिव हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में नेगेटिव हो तो न्यूमरेटर चेंज करते ही वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सिंपल आप ध्यान रखना कि रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इफ एनी वेरिएबल या नंबर पावर गिवन 0, ठीक है, किसी भी नंबर या पावर का वैल्यू 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, इफ एनी वेरिएबल या नंबर पावर इज 0 दैट मीन्स 1, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 को। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे हमने मल्टीप्लाई में एक देखा था कि अगर उसके पावर 5th वाला, ठीक है, हमने क्या देखा कि बेस डिफरेंट है और मल्टीप्लीकेशन में दिया हुआ है, बेस डिफरेंट है मल्टीप्लीकेशन में दिया है तो उसके पावर को हमने कॉमन ले लिया। इसी तरह डिवाइड में भी होता है, इफ बेस आर सेम एंड डिवाइड फॉर्म में दिया है, ठीक है, तो इसके भी पावर सेम हो जाते हैं, a/b अपॉन b एंड द पावर m। ठीक है, 3 power 2, 7 power 2, so here you write 3/7 power 2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, if any numbers power is even number, so always is result is positive। ठीक है, always उसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। लाइक एग्जांपल -2 का पावर हमने ले लिया 4, -2 का पावर 4, तो जैसे ही यू मल्टीप्लाई 4 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, 16 आ गया, देन माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, ठीक है, ये 2 माइनस लिए प्लस हो गया, फिर अगेन 2 माइनस लिए प्लस हो गया, तो प्लस 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 हो गया। तो दैट मीन्स इफ यू नंबर नेगेटिव एंड द पावर इज पॉजिटिव, सो द if base are negative, power even, so number is always positive। ठीक है, नंबर ऑलवेज पॉजिटिव में आएगा। और इसी का अपोजिट हम लोग ले लेते हैं, इफ बेस आर नेगेटिव एंड द पावर इज ऑड नंबर, सो द रिजल्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, तो उसका रिजल्ट हमेशा
नेगेटिव आएगा, लाइक एग्जाम्पल -2 का पावर 3, सो -2 multiply -2 multiply -2, so 2 2s are 4, 4 2s are 8. Okay, 4 2s are 8, minus minus plus and plus minus minus. ठीक है, क्लियर? किसी को भी कोई भी फॉर्मूला में डाउट बच्चे? ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है, यहाँ क्लियर है सबको? लास्ट इस वाला फॉर्मूला को बार आपको समझा मेमोराइज दीजिए। करना है। हाँ, लास्ट वाला फिर से कर देता हूँ, ठीक है। If base are negative and the power is odd number, result is always negative. Like example 2, 2 is a base and negative में है, then power is 3, 3 is a odd number. जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 3 टाइम, तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, माइनस प्लस, ठीक है, यहाँ तो प्लस आ गया, बट प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो ये आपका आ गया। Yes, sir. ठीक है बच्चे, Yes, sir. तो ये फॉर्मूला हाँ, ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि जैसे ही आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो ये फॉर्मूला का यूज करके ही हम चैप्टर स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से इसको करना है, छोटा ही चैप्टर है, बट ये बेसिक, बेस, एक्सपोनेंट, पावर, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से हमें याद करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फैक्टराइजेशन बनना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको इस चैप्टर में यूज होगा। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी हमें बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ठीक है, किसी Yes, को भी sir. डाउट, Yes, कोई sir. फॉर्मूला में डाउट? फॉर्मूला इज क्लियर सबको? अब मे भी शायद आपकी नेक्स्ट क्लास आज फ्राइडे, मंडे को है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कंप्लीट योर नोटबुक, 12 चैप्टर तक कंप्लीट करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, और होमवर्क आप सेंड करेंगे अपना गूगल क्लासरूम में। ओके, Yes, sir. Yes, ठीक sir. है बच्चे, Yes, sir. संडे तक सभी के होमवर्क करने चाहिए। क्लियर? हाँ, और किसी को डाउट चैप्टर 12 या इस फॉर्मूला में? ठीक है, एग्जाम्पल में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? फिर से एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। इफ बेस आर सेम एंड द पावर आर डिफरेंट एंड गिवन टू द मल्टीप्लाई, सो सिंपल यू ऐड द पावर। ठीक है, पावर को सिंपल ऐड कर देंगे। ठीक है, and again base are same and the power different, या same भी होगा, no problem, but is given to the division form। अगर division form में है तो that means you subtract the power। ठीक है, सेम यही इसी तरह थर्ड भी है, सेम है, अपॉन फॉर्म में दिया हुआ है। इफ गिवन टू द अपॉन फॉर्म, अगेन यू टेक द माइनस। ठीक है, अगेन आप क्या लेना, माइनस। देखो ये आपका डिवीजन से मिलता हुआ है। ठीक है, डिवीजन फॉर्म से मिलता हुआ है। नेक्स्ट, इफ फोर्थ में इफ गिवन टू द पावर ऑफ ब्रैकेट्स, टू पावर्स और ब्रैकेट्स का यूज कर रहा है, ब्रैकेट मींस मल्टीप्लाई, सो सिंपली मल्टीप्लाई टू द बोथ। ठीक है, जो भी हमारा पावर में होगा, बोथ पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, नेक्स्ट, अगर base are different and the power are same and in between is given to the multiply sign, so simply you write the inside